ناظرین آداب، میں آپ کا دوست مرزا اسد بیگ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرواتے ہیں، وہ جتنی مرتبہ بھی صبح یا شام کو جائے۔ خبرنامے سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ متحدہ ضلع کے مختلف دیہاتوں میں وقف ترمیمی بل کے خلاف بعد نماز جمعہ کیا گیا خاموش احتجاج درج۔ جون تک سیتاپور ریزروائر سے کسانوں کو آبپاشی کے لیے پانی سربراہ کیا جائے۔ ضلع نظام آباد کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو کے ہمراہ محکمہ آبپاشی کے عہدیداروں کے ساتھ ریاستی زرعی مشیر پوچارام سرینواس ریڈی نے کیا مشاہدہ۔ اہل مستحق افراد خاندان نیشنل بینیفٹ اسکیم سے استفادہ حاصل کریں۔ اہلیت رکھنے والے درخواست دہندگان کو 20,000 روپے مالی امداد دینے کا ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے کیا اظہار۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کے آخری جمعہ جمعۃ الوداع کے موقع پر کیے گئے بندوبست کا پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا نے لیا جائزہ۔ 2025 تا 2026 بجٹ اجلاس ریاست میں تاریخ رقم کرے گا۔ قانون ساز کونسل میڈیا پوائنٹ سے BRS MLC کے کویتا نے کیا اظہار۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شب قدر کے پیش نظر شہر کے مختلف مساجد میں خصوصی عبادات کا اہتمام، تاجرین کی جانب سے کاروبار بند اور عبادات میں مشغول۔ گزشتہ شب شہر نظام آباد میں شب قدر کے موقع پر ہر مساجد میں نماز عشاء میں مسلمانوں کی کثیر تعداد دیکھی گئی۔ مساجد میں بعد تراویح کے خصوصی عبادات اور شب قدر کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔ کل رات کافی تاجرین نے کاروبار بند رکھتے ہوئے عبادتوں میں حصہ لیا اور شہر کا احمدی بازار پوری طرح بند دیکھا گیا، تو اس مبارک رات کے باوجود کئی ہوٹل اور تاجرین نے کاروبار کو کھولا رکھا، جس میں نوجوانوں کی کثیر تعداد کو اس رات کی فضیلت سے محروم دیکھا گیا۔ مستقل بھینسہ کے مسلمانوں نے جمعۃ الوداع کو سیاہ پٹیاں باندھ کر پرامن احتجاج کیا درج۔ مختلف مساجد میں وقف ترمیمی بل کے خلاف مظاہرہ۔ اوقافی جائیدادیں خالص اللہ کی امانت، اس میں ترمیم ناقابل برداشت۔ علماء، مشائخ اور سیاسی رہنماؤں کے خطابات۔ امت مسلمہ نے مرکزی حکومت کی جانب سے پیش کردہ وقف ترمیمی بل کے خلاف خود ہند مسلم پرسنل لا بورڈ کی احتجاجی مہم کی تائید کرتے ہوئے بورڈ کی اپیل پر جمعۃ الوداع کے موقع پر اپنے بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھ کر خاموش احتجاج درج کیا۔ علماء و سیاسی قائدین نے اپنے خطاب میں کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے دہلی کے جنتر منتر اور پٹنہ میں جو احتجاج کیا، مسلمانوں کے پرزور احتجاج نے کم از کم BJP کی حلیف جماعتوں کی صفوں میں ہلچل مچا دی ہے، اور کہا کہ وقف ترمیمی بل مسلمانوں کے خلاف ایک گہری سازش ہے، جس کا واضح مقصد مسلمانوں کو ان کی مساجد، عیدگاہوں، مدارس، درگاہوں، خانقاہوں، قبرستانوں اور ان کے اداروں سے محروم کرنا ہے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وقف کے تحفظ کے لیے انفرادی و اجتماعی طور پر ہمیشہ تیار رہے۔ واضح رہے کہ مسلمانان بھینسہ نے اپنے غم و غصے کا پرامن خاموشی کے ساتھ مظاہرہ پیش کیا کہ اس وقت جائیدادوں کو جو اللہ کی امانت ہے، ان کو نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کو ستایا جائے۔ آج ہم بھینسہ مسجد بلال مسجد میں ہماری جماعت، جو ہماری تنظیم ہے وقف تنظیم، ان کے ہم جو ہے حکم پر اپنے ہاتھوں پر کالی پٹی باندھ کر اس احتجاج کو درج کروائے ہیں۔ جس طریقے سے پچھلی مرتبہ
यही हुकूमत CAA NRC के ख़िलाफ़ जब हम लोग एहतजाज करें, अगर ये हुकूमत अगर बाज नहीं आएंगी तो आइंदा दिनों में भी हम इसका एहतजाज और करेंगे। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से खुसूसी ईद उल फित्र का तक़सीम राशन प्रोग्राम। हाफिज सैयद वाजिद नवाज ने आज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि 2018 में मौलाना सैयद वलीउल्लाह खां कासमी अलैहि रहमत की सरपरस्ती में खौफ व मिल्लत की खिदमत के जज्बे ने अल्लाह का नाम लेकर सोसाइटी ने मुख्तसर काम का आगाज़ किया। इस तंजीम ने बेसर व सामानी के आलम में महज खिदमत गुजारानान दीन मिल्लत के माशी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए अपनी बिसात भर कोशिश वसी करके चंद बंदगान खुदा को तवज्जो दिलाकर काम शुरू किया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी के क़याम को 7 साल मुकम्मल होने आ रहे हैं। ताहाल लाखों रुपये के बजट से इस्तेकामत के साथ हर माह तक़सीम राशन का प्रोग्राम मुनक़िद होता आ रहा है। शहर के अकाबिर उलमा कराम वो दीगर मोज़िरीन, शहर सियासी व समाजी कायदीन ने इस काम को अपनी आँखों से देखा और दुआओं से नवाजा, जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हर माह की अव्वलीन तारीख़ों खतीर रकम से सामान खुर्द व नोश गुरबा व ज़रूरतमंदों तक पूरी तहक़ीक़ और राजदारी के साथ पहुँचाया जाता है। मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब, सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद, मुफ्ती शेख जाबिर साहब व अब्दुल्ला इंजीनियर व दीगर मेहमानों ने शिरकत की। हाफिज़ आमिर नायब सदर सोसाइटी ने जुमला माविनीन का शुक्रिया अदा किया। हाफिज़ वसीम खान जनरल सेक्रेटरी, हाफिज़ नदीम, हाफिज़ नईम, हाफिज़ अब्दुल वली, हाफिज़ इब्राहिम, हाफिज़ अनीस, हाफिज़ असलम, हाफिज़ अब्दुल मुजीब व कारकुनान शरीक थे। जमीयतुल हुफ़ाज़ तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम रमज़ानुल मुबारक में जैसा कि हमेशा तरीक़ा रहा है कि वो हुफ़ाज़ उलमा जो बहुत ही ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं और वो हुफ़ाज़ उलमा जिनका इंतकाल हो गया, उनके घर वालों का ख्याल करते हुए जमीयतुल हुफ़ाज़ ख़ास तौर पर मरहूम हुफ़ाज़ उलमा के अहले ख़ानदान और अहले घर तक ईद का सामान और रमज़ान का सामान पहुँचाने की कोशिश करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिलसिले का ये काम आज फिर अंजाम दिया जा रहा है आप बुज़ुर्गों की दुआओं से। तो इस मरतबा भी इंशाअल्लाह 30 घरानों में तकरीबन पूरे महीने का राशन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा ये काम इसी तरह चलता रहे और आगे बढ़े, और हम मुआविनीन का शुक्रिया अदा करते हैं। मज़ीद लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस कार्य खैर में हिस्सा लें। ये बहुत बड़ा काम है, अल्लाह के बंदों की खिदमत है और बंद मुट्ठी ये काम हो रहा है। कोई फ़ोटो भी नहीं लिया जाता, कोई ऐसा जिनको दिया जा रहा है उनका कोई इजहार भी नहीं किया जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही तरीक़े से ये काम अंजाम दिया जा रहा है। जमीयतुल हुफ़ाज़ के खुद्दाम पूरी मेहनत और कोशिश से ज़रूरतमंद तक घर घर पहुँचकर ये खिदमत उनकी जो है उनको पेश करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। बांसवाड़ा जामा मस्जिद के अहाते में कांग्रेस पार्टी बांसवाड़ा इंचार्ज साबिक़ा रुकन असम्बली एंगू रेवेंद्र रेड्डी की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम, सैकड़ों अफराद ने की शिरकत। बांसवाड़ा जामिया मस्जिद के अहाते में कांग्रेस पार्टी बांसवाड़ा इंचार्ज रुकन असम्बली एनगू रविंदर रेड्डी की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम अमल में आया और इस दावत इफ्तार में सैकड़ों अफराद ने शिरकत करते हुए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। इस मौके पर बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज एनगू रविंदर रेड्डी ने सहाफ़ियों को बताते हुए कहा कि माह रमज़ान मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस और बाबरकत महीना होता है। इस माह में मुसलमान भाई खूब इबादत करते हैं, लिहाजा मेरी और मेरे कांग्रेस पार्टी कायदीन की जानिब से क़ब्ल अज़ रमज़ान अल मुबारक की ईद मुबारक पेश करते हैं। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन एल मंचा श्रीनिवास बालाकृष्णा, मंत्री गणेश प्रताप सिंह, किशोर यादव, शेख अकबर, कोटगीर असलम, कोटगीर सलीम अहमद, नसीम, अमजद खान और दीगर हजरात मौजूद थे। బాన్స్వాడ నియోజకవర్గంలో ముస్లిం సోదరులు చాలా ప్రామాణికంగా రోజా ఉంది దేవుని యొక్క అల్లాహ్ యొక్క ఆశీర్వాదం ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళు ఉపవాసాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఈరోజు 6:36 రోజా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు भारत के साथ साथ दुनिया भर में 29 मार्च 2025 को मुकम्मल सूरज ग्रहण, माहिरीन की जानिब से पेश क़यासी।
भारत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 2025 में सूरज ग्रहण होने वाला है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक 29 मार्च 2025 को मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा, जो नए चांद यानी अमावस के दिन रोनुमा होगा। ये ग्रहण कुछ मखसूस इलाकों में ही नज़र आएगा, जिनमें एशिया, अफ्रीका, जनूबी अमरीका, शुमाली अमरीका, यूरोप और अटलांटिक के खित्ते कुछ ममालिक शामिल हैं। भारतीय वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण रात के वक्त होगा, इसलिए ये भारत में नज़र नहीं आएगा। दीगर ममालिक के मियारी वक्त के मुताबिक ये दोपहर 2:20 से शुरू होगा, शाम 4:17 मुकम्मल होगा और शाम 6:13 पर ख़त्म हो जाएगा। भारत में ये सूरज ग्रहण ना होने की वजह से सोशल मीडिया पर हामिला ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ तौहीमात और गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। साइंसदानों का कहना है कि सूरज ग्रहण का कोई साइंसी नुकसान नहीं होता, इसलिए इन बातों पर यकीन ना किया जाए। ताहम कुछ रिवायती अक़ायद रखने वाले अफराद हामिला ख़वातीन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज, सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने गुजरात के जामनगर में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज को खारिज कर दिया है। ये मुकदमा एक सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर दर्ज किया गया था, जिस पर इल्ज़ाम था कि इससे फ़िरका वाराना हम आहंगी मुतासिर हो सकती है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने अपने तारीखी फैसले में वाज़ेह किया कि इस पोस्ट में ऐसा कोई मवाद मौजूद नहीं था जो समाजी तफरीक़ा पैदा करे। अदालत ने इस मौके पर इजहार राय की आज़ादी के आईनी हक़ पर भी ज़ोर दिया और कहा कि पुलिस और अदलिया का फ़र्ज़ है कि वो इस बुनियादी हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी शहरी की आज़ादी को गैर ज़रूरी तौर पर महदूद नहीं किया जाना चाहिए और आज़ादी इजहार को दबाने के लिए बेबुनियाद मुकदमात दर्ज करना मुनासिब नहीं। इस फैसले को आज़ादी इजहार और बुनियादी हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से एक अहम पेशा रफ़त समझा जा रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मुक़द्दम किया। माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमा जुम्मतुल विदा के मौके पर किए गए बंदोबस्त का पुलिस कमिश्नर पी.साई चैतन्या ने लिया जायज़ा। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर पी.साई चैतन्या ने आज माह मुक़द्दस रमज़ान अल मुबारक का आखिरी जुम्मा जुम्मतुल विदा के मौके पर किए गए बंदोबस्त का जायज़ा लेते हुए इन्होंने अक़लियती बरादरान की जानिब से अदा की जाने वाली नमाज में किसी भी किस्म की रुकावट किए बगैर खुश असलूबी के साथ अंजाम देने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी। आज इसको मद्देनज़र रखते हुए पुलिस कमिश्नर पी.साई चैतन्या ने शहर के गांधी चौक, किशनगंज मार्केट, क्लॉक टावर, नेहरू पार्क चौरस्ता व दीगर इलाकों को पैदल पेट्रोलिंग करते हुए सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अवाम और पुलिस एहलकार हमेशा दोस्ताना और भाईचारे के साथ रहते हुए तमाम अफराद इनके अफराद ख़ानदान के साथ खुशी व मसरत के साथ रहते हुए माशरे में अमन व अमान को कायम रखने के लिए तमाम अफराद को कोशिश करने की हिदायत दी। अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। Celebrating 30 years of excellence in education, Presidency Group of Schools is now bringing its legacy to a brand new international campus. Aravali campus is spread across 2 acres. The campus is built based on international standards. Smart screens in classrooms for interactive learning. Indoor sports courts like badminton courts, outdoor cricket nets and basketball courts with sports coaches. Studios for dance and music, a modern library, arts room and yoga arena. Opening in June 2025, Aravali is just 5 minutes away from Pulang Crossroads. For more information, please call us or visit our Vinayak Nagar Presidency School campus. ज़िले में अहले मुस्तहिक़ अफराद खानदान नेशनल बेनिफिट स्कीम के तहत दरख्वास्त देने की ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की ताकीद।
ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے کہا کہ اہل مستحق افراد خاندان کو اس اسکیم کے تحت 20,000 روپے مالی امداد دی جائے گی، جو آج انعقاد عمل میں لایا گئے صحافتی بیان میں اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو اپنی روزی روٹی کے بنیادی ذرائع سے محروم ہو چکے ہیں یا کوئی کفالت کرتے ہوئے فوت ہو گیا ہو تو ان کی عمر 18 سال سے زائد اندرون 60 سال ہونے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اہل مستحقین می سیوا کے تحت درخواست دے سکتے ہیں۔ کلکٹر نے کہا کہ اہل مستحق افراد خاندان کو اس اسکیم کے تحت فائدہ پہنچانے کے لیے بڑے پیمانے پر شعور بیداری فراہم کرنے کے لیے اس سے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی۔ سریکنڈا منڈل کے تمپلی دیہات میں سوسائٹی چیئرمین رامولو نائک کے زیر قیادت دھان خریداری سینٹر کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ سریکنڈا منڈل کے تونپلی دیہات میں سوسائٹی چیئرمین رامولو نائک کے زیر قیادت خصوصی رسم و رواج کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے دھان خریداری سینٹر کا آغاز عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر منڈل کانگریس پارٹی صدر پی روی نے کہا کہ گزشتہ سیزن کے مقابلے میں اس بار 1 ماہ پہلے ہی کاشتکاری شروع کیے جانے کی وجہ سے دھان کٹائی کے لیے آنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ رورل ایم ایل اے ڈاکٹر بھوپتی ریڈی کی کامیاب نمائندگی کے سبب کسانوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے ہر ایک منڈل میں دھان خریداری مراکز کا قیام عمل میں لاتے ہوئے کسانوں کو مناسب قیمت فراہم کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں سوسائٹی چیئرمین رامولو نائک، وائس چیئرمین عباس، ڈائریکٹر ٹی لکشمن، اے ایم بھیمیا، روپ سنگھ، چندر نائک، رمیش، سی او دیوی لال کے علاوہ کسانوں نے شرکت کی۔ ప్యాడీ సెంటర్ను ప్రారంభించడం జరిగింది. మరి మనం చూసుకుంటే గత ఖరీఫ్లో కూడా జనవరి 20కి వాస్తవం కంప్లీట్ అయింది మన తెలంగాణలో. మనకు కూడా ముందు వచ్చింది. మరి గత సీజన్ కంటే ఈ సంవత్సరం ఒక నెల ముందు నాట్లు వేసాం. మరి అదే విధంగా నెల కూడా మనకు ముందు వచ్చింది. మరి మన ఎమ్మెల్యే గారు కూడా కలెక్టర్ గారితో మన వ్యవసాయ శాఖ మంత్రితో మాట్లాడి ఈ నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే సిరికొండ, ఇంకొక కోటగిరి మండలం, ఈ 2 మండలాలే ముందు వచ్చింది. ఒక 20 రోజుల ముందు వచ్చింది. కాబట్టి మనం కూడా రైతులు మనం అర్థం చేసుకొని మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాన్ని రాజకీయ निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चेतनिया ने शहर का तूफानी दौरा करते हुए 1 टाउन 2 टाउन पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े मुख्तलिफ इलाकों में की पेट्रोलिंग। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या ने गुज़िश्ता शब अक़लियती बिरादरान की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए शब क़दर के तहत पैदल पेट्रोलिंग करते हुए शहर निजामाबाद में वाक़े जामिया मस्जिद, बरकतपुरा, मालापल्ली, आटो नगर, अहमदी बाज़ार, गुरुद्वारा व दीगर इलाकों में पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम के हालात हाजिर से आगाही हासिल की। फ़िलहाल अमन व अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए इक़दाम करने की अहदेदारों को हिदायत दी। सबको आदाब। आज शब कदर का जो तमाम निज़ामाबाद का आवाम को शब कदर का मुबारकबाद दे रहा हूँ। आज शब कदर के दिन में हम लोग सारी एरिया में सब जगह पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि ये अमन और शांति से सभी लोग अपना इबादत करें। थैंक यू। बांसवाड़ा हल्के नसरुल्लाबाद बिरकुर मंडल के हदूद में वाक़े मैलारामपुर सोसाइटी के अहाते में वाक़े तिम्मापुर देहात में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकिज़ का रियासती ज़रई मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इफ्तिताह। रियासती हुकूमत के ज़रई मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने वर्नी मंडल के मुकाम पर वाक़े सुद्दापुर जंगलाती इलाके में तामीर किए जाने वाले सुद्दापुर रिजर्वायर ज़ेरुल्तवा कामों को फौरी तौर पर मुकम्मिल करने का इज़हार किया। वो शहर निज़ामाबाद में वाक़े सड़क R&B गेस्ट हाउस में ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनमंतु के अलावा महकमे जंगलात व रेन्यू अहदेदारों के हमरा रियासती मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुशाहिदा करते हुए इन्होंने ज़ेरुल्तवा कामों को फौरी तौर पर मुकम्मिल करने की अहदेदारों को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में ज़िला चीफ इंजीनियर श्रीनिवास बोधन, सब कलेक्टर के अलावा दीगर ने शिरकत की। जिला कामारेड्डी बिरकुर मंडल के मुकाम पर वाक़े तिम्मापुर देहात में रियासती ज़रई मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने धान खरीदारी मराकिज़ का किया इफ्तिताह। जिला कामारेड्डी बिरकुर मंडल के मराकिज़ पर वाक़े तिम्मापुर देहात में रियासती हुकूमत के ज़रई मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, आग्रोस इंडस्ट्रीज चेयरमैन के बालारात, सब कलेक्टर
के हाथों धान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि किसान अपने काश्त करदा पैदावार को फ़रोख्त करने के दौरान होने वाली मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की जानिब से धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाते हुए किसान हुकूमत को दलालों के धोखाधड़ी से रोकने के लिए किसानों को इनकी जानिब से काश्त करदा पैदावार को मुनासिब कीमत की फ़राहमी अमल में लाई जा रही है। लिहाजा इन्होंने तमाम किसानों को धान खरीदारी मराकज़ पर अपनी पैदावार को फ़रोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। మొత్తం మీద ఈ యాసంగిలోనే 66 లక్షల ఎకరాలలో వరి పంట వేశారు. ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల ద్వారా రాష్ట్రంలో 7600 ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. 1,32,00,000 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తామని అంచనా వేశారు. ఆ 1,32,00,000 మెట్రిక్ టన్నులలో మన పాత్ర ఎంత ఉందనంటే అటు నిజామాబాద్ జిల్లా, కామారెడ్డి జిల్లా, 2 జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మన ఏరియాలో పండించినటువంటి పంటలు దాదాపు 9 లక్షల నుంచి 10 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం ఒక్క బాన్స్వాడ కాన్స్టిట్యూన్సీ లో పండబోతా ఉంది. అత్యధికంగా వరి పంట పండించేటువంటి నియోజకవర్గం తెలంగాణలో బాన్స్వాడ కాన్స్టిట్యూన్సీ. తెలంగాణలోనే నంబర్ 1 దిగుబడి పొందేటువంటి కాన్స్టిట్యూన్సీ కూడా మన బాన్స్వాడ కాన్స్టిట్యూన్సీ చెప్పి మీకు అందరినీ మనం చేస్తా ఉన్నాం. 2025-26 बजट इजलास रियासत में तारीख रकम करेगा। कानून साज काउंसिल मीडिया पॉइंट से MLC BRS के कविता ने किया इजहार। रुकन कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल के अहाते में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत की नाकामियों और अवाम के लिए किए गए झूठे वादों को बेनकाब किया। इन्होंने कांग्रेस हुकूमत की गुमराहकुन पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की। BRS कायद कविता ने वाजे किया कि कांग्रेस हुकूमत अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट में वाजे किया कि तेलंगाना के मजमूई कर्जे 4,42,000 करोड़ रुपये हैं, लेकिन वजीर आला रेवंत रेड्डी 8 लाख करोड़ रुपये का झूठा प्रोपेगंडा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अवाम को गुमराह करने के बजाय हुकूमत को हकीकत तस्लीम करनी चाहिए। झूठ बोलकर इख्तिदार हासिल करने वाली कांग्रेस हुकूमत को अब सच बोलने की आदत डालनी होगी। इन्होंने बताया कि इस इजलास में BC रिजर्वेशन बिल और SC दर्जाबंदी बिल की मंजूरी हुई, जिसमें BRS का अहम किरदार रहा। ये कामयाबी BRS की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है, जो समाजी इंसाफ और तमाम तबकात के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है। ये इजलास तेलंगाना की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा और BRS अपनी अवामी जद्दोजहद को मज़ीद शिद्दत के साथ जारी रखेगी। మండలిలో మేము ప్రొటెస్ట్ చేసినాం ప్రభుత్వం మీద. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడడానికి వచ్చినప్పుడు అంతకుముందు వారు మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారి పైన చేసినటువంటి అనుచిత వ్యాఖ్యలకు ప్రొటెస్ట్ చేయడంతో ఈ సభ ప్రారంభిస్తే చివరి రోజు కూడా మరి ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ విషయంలో ప్రభుత్వం నుంచి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి జవాబు మేము రాబట్టగలిగినాం. ఇది కేవలం BRS పార్టీ మండలి సభ్యులందరూ చేసినటువంటి పోరాటం అని చెప్పి నేను బలంగా నమ్ముతా ఉన్నాను. ఇన్ని రోజులు ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ మీరు 8,000 కోట్లు ఇవ్వాలంటే జవాబు చెప్పినటువంటి ప్రభుత్వం మొన్న మండలిలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 12 నెలలలో పాత అప్పులను నెలకింత అని తీరుస్తామని చెప్పి కొత్తగా ఇవ్వాల్సిన ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్లు ఆన్ ద స్పాట్ ఎప్పటికప్పుడు పేమెంట్ చేస్తామని చెప్పి మండలి సాక్షిగా వారు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. మరి మండలిలో జవాబు రాబట్టగలిగినటువంటి మేమందరం వారు ఇచ్చినటువంటి మాట పూర్తి చేసేంత వరకు కూడా వారిని ఎండగడుతూనే ఉంటాం, ప్రజాక్షేత్రంలో వారిని వెంటాడుతూనే ఉంటామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. అట్లానే ఈ సెషన్స్ ప్రత్యేకించి మన రాష్ట్ర చరిత్రలో నిలిచిపోయేటటువంటి సెషన్స్. ఎందుకోసం చెప్తా ఉన్నామంటే బీసీలకు సంబంధించి 42% విద్యా, ఉద్యోగ, రాజకీయ పరంగా రిజర్వేషన్లు తెచ్చేటటువంటి బిల్లు ప్రవేశపెట్టుకోవడం చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది. అట్లానే ఎస్సీ వర్గీకరణకు సంబంధించి ప్రవేశపెట్టినటువంటి బిల్లు కూడా చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा ज़िला के मुख्तलिफ देहातों में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ बाद नमाज जुम्मा किया गया। खामोश एहतजाज दर्ज। जून तक सीतापुर रिजर्वायर से किसानों को आपाशी के लिए पानी सरबराह किया जाए। जिला निजामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के हमरा महकमे आपाशी के ओहदेदारों के साथ रियासती ज़राई मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया मुशाहिदा।
अहले मुस्तहिक अफराद ख़ानदान नेशनल बेनिफिट स्कीम से इस्तेफ़ादा हासिल करें। अहलियत रखने वाले दरख्वास्त दहिंदगान को 20,000 रुपये माली इमदाद देने का ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। माह मुक़द्दस रमज़ान अल मुबारक के आखिरी जुम्मा जुम्मतुल विदा के मौके पर किए गए बंदोबस्त का पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या ने लिया जायजा। दो 2025-2026 बजट इजलास रियासत में तारीख रकम करेगा। कानून साज काउंसिल मीडिया पॉइंट से BRS MLC के कविता ने किया इजहार। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।